हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसाइंट वंस अगेन। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ, विच इज़ अ सीक्वल ऑफ द रिप्रोडक्शन चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जो चैप्टर था उसके 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड वीडियो जो है मेरा, उसमें मैंने बात करी है अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको 2 चीजें बताने वाली हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर बॉडी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, which we have already discussed. Okay, so let's get started. First I will discuss male reproductive system. मैंने आपको पहले भी बताया था बेटे कि हम रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं और मेन पर्पस क्या है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस द यंग वंस ऑफ योर ओन काइंड। सो why is it important? Because reproduction ensures the continuity of the species. Reproduction will ensure the continuity of the species means if the one of the species is not reproducing, it is quite possible that they will be eliminated from the nature. So that's why reproduction is an important phenomenon. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, और इसका मेन सिग्निफिकेंस ये है कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि यहाँ 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, और इनका फ्यूजन होता है और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इसीलिए हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को ओवम कहते हैं। मेल गैमेट मेल बॉडी में फॉर्म होती है और फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होती है। There are certain organism in which both the gametes are being produced by the same organism. Can you tell me what are those organism, or what is the term used for that kind of organism which shows sexual dimorphism, or those organism which have the separate sexes are separate? So you will answer me in the comment box. Now let's get started. In the male reproductive system, we have to study about, first we will discuss about the testes, then there are ducts which will transport the gamete, then we will talk about the accessory glands, and then we will talk about the supportive structure which helps in the transport of gamete, or it is also called as copulatory organ. I hope you are having enough time to understand what is being taught here. So stay focused, stay tuned. I am going to explain you in such a manner that there will be no doubt regarding this topic and you will be able to score good marks. Okay, so testis. First, we discuss about the location of testis in the human body, and from here there are certain questions asked which is very very important. So, what is the location of testis? Location of testis. Human testis is located outside the abdominal cavity. Excuse me. So, location is outside the abdominal cavity,
or we can call it extra abdominal cavity. Inside a pouch like structure called, can anyone tell me what is this? Yes, you are absolutely correct. That pouch-like structure is called scrotum. Very good. Scrotum. Now, can anyone tell me what is the reason that the testes are located outside the body, not inside the body? Because, of course, it's a part of body, but it is outside the abdominal cavity. Why is it so? Because the main purpose of the testis is to produce the gamete, and that's called sperms, and the sperms are formed inside the testis, which requires slightly lower temperature than the body temperature. So inside the scrotum the temperature is slightly lower than the body temperature. Can you tell me what is the body temperature, normal body temperature? Just let me know. So inside the scrotum the temperature is 2 to 2.5 degrees Celsius lesser than the body temperature. So which facilitate the process of spermatogenesis. Now this term might sound difficult for you, but I will make it easier for you. It's spermatogenesis. Spermatogenesis. A sperm and genesis is formation of a sperm. So it's spermatogenesis. So where the temperature is 2 to 2.5 degrees Celsius lesser to facilitate sperm formation, or you can call it a spermatogenesis. I hope this is clear. Now, there is a term when this testis comes to the scrotum. It's not after birth. When a baby boy is inside the womb of the mother, during the 7th month of their growth, the testis descends into the scrotum through a canal that is called inguinal canal. But when it fails to do so, in some of the cases, when the testis fails to descend into the scrotum, there is a disorder called cryptorchidism. Cryptorchidism. क्या होता है बेटे? Cryptorchidism. What is this? This is an abnormal condition. This is an abnormal condition when testis fails to descend into the scrotum. ठीक है बेटे? Descend into the scrotum. Now what can be done then? It can be surgically brought into the scrotum. Okay. If it is not done, the person will be sterile. Okay. Will not be able to produce the young ones. Okay. Then we will be I request you to jot it down quickly so that I will be explaining you the structure of the testis and what are the ducts emerging from here. Okay. So you can see each testis is having different compartments. Each testis is having compartments. It is approximately 230 compartments, and those compartments will be termed as testicular lobule. क्या बोलेंगे बेटे? Testicular lobule.
ध्यान से समझिए इसको। हर एक टेस्टिस जो है उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं और उन कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिक्युलर लॉब्यूल कहते हैं। कितने हैं? अप्रॉक्स 230। और हर एक कंपार्टमेंट में दो या तीन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे? सेमिनिफेरस tubules. What is the significance of these seminiferous tubules? I'll be telling you. इनको क्या कहेंगे बेटे? Seminiferous tubules. Seminiferous tubules. Tubules. ठीक है? Seminiferous tubules कहेंगे इन्हें। तो यही वो जगह है, दिस इज द एक्चुअल साइट जहां स्पर्म बनते हैं। स्पर्म कैसे बनते हैं बेटे? क्लास 9 में आपने पढ़ा था सेल डिवीजन के बारे में, और सेल डिवीजन में एक पर्टिकुलर सेल डिवीजन है मियोसिस, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जहां ये जो जर्म सेल्स होते हैं इट अंडरगो मियोसिस एंड इट फॉर्म्स गैमेट्स। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल की जो लाइनिंग है उसमें जर्म सेल होंगे जिसमें मियोसिस होगा और गैमेट्स बनेंगे। वंस द गैमेट्स आर फॉर्म्ड दे हैव टू लीव दिस प्लेस, इजंट इट? इसको यहां नहीं रखना है, इसको बाहर निकालना है। तो ये छोटे छोटे ट्यूब से बाहर निकलेंगे और ये ट्यूब्स कंबाइंडली एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम हमने रखा है रेटे टेस्टिस। क्या रखा है? रेटे टेस्टिस। यहां आकर ओपन हो रही है ये छोटी छोटी जो ट्यूब्स है, इसका नाम हमने रखा है रेटे टेस्टिस। ध्यान से समझिएगा बेटे, आपको सारी चीजें समझ आएगी। मैं आपसे सीक्वेंस पूछूंगी इसका, ठीक है? अब यहां से एमर्ज होंगी फिर से छोटी ट्यूब्स। इन ट्यूब्स का नाम हमने क्या रखा है बेटे? इन ट्यूब्स का नाम है वासा एफ्रेंशिया। क्या नाम है? वासा एफ्रेंशिया। ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, आपको समझ में आ जाएगा सीक्वेंस। हम डक्ट्स की बात जब करने वाले हैं तो वासा एफ्रेंशिया, ये वासा एफ्रेंशिया जो है वो कंबाइंड होकर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम एपिडिडाइमिस कहेंगे। क्या कहेंगे? एपिडिडाइमिस। आई होप आपने ये नाम सुना होगा, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऑफ कोर्स यहां से तो स्पर्म बन रहा है और ये इधर जा रहा है, तो एपिडिडाइमिस का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है बेटे, यहाँ पे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर है, जब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप तो उसमें हेड होता है, मिडिल बॉडी जो होती है, नेक होता है और टेल होता है। तो उसमें ये जो चेंजेस है, जो हेड पार्ट है, टेल पार्ट है, ये जो बन रहा है ये एपिडिडाइमिस में ही बनता है। और उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि ये जो टेस्टिस से निकलने वाला जो मेन डक्ट है, क्या बोलते हैं उसको? वास डेफरेंस। क्या बोलते हैं बेटे? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस। क्या समझा आपने? मैं फिर से आपको समझा रही हूं। टेस्टिस की जो कवरिंग है, देयर इज अ लाइनिंग। हायर क्लास में मैं इसका नाम भी बताती हूं। उसके बाद ये हर एक टेस्टिस में क्या है बेटे? कंपार्टमेंट्स हैं। इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहेंगे हम? टेस्टिक्युलर लॉब्यूल। कितने हैं आप बताओ? यस, इट्स 230 अप्रॉक्स। और हर एक कंपार्टमेंट में 2 या 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। क्या है बेटे? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में क्या होगा, मैं उसका भी स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में क्या होगा? लाइनिंग होगी जर्म सेल की, और उन जर्म सेल से मियोसिस होगा और गैमेट्स बनेंगे। कौन सा गैमेट? मेल गैमेट, जिसे हम क्या कहेंगे? स्पर्म। उसके बाद ये सारे कैरी करके लाएगा, छोटे छोटे डक्ट्स लेकर आएंगे रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस से फिर इमर्ज होंगे और छोटी छोटी ट्यूब्स जो हैं वासा एफ्रेंशिया। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। रेटेटेस्टिस के वासा एफ्रेंशिया, तब
फिर से क्या आएगा, एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से मैच्योर स्पर्म आ गया वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस में अभी और भी डक्ट्स ज्वाइन होंगे। पहले मैं आपको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स बताने वाली हूँ। मान लो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है किसका, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का। 2 या 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है बेटे। ये है आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का क्रॉस सेक्शनल व्यू, और यहाँ पे लाइनिंग है किसकी, जर्म सेल्स की। किसकी, जर्म सेल्स की लाइनिंग है, ठीक है बेटे, जर्म सेल्स की लाइनिंग है। इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें होता है, बताइए, इसमें होगा मियोसिस। किस लिए होगा मियोसिस, वाई, क्यों जरूरी है मियोसिस, क्यों होगा यहाँ बताइए, क्योंकि गैमेट्स प्रोड्यूस करना है, तो गैमेट्स बनते जाएंगे, ठीक है ना बेटे, गैमेट्स बनेंगे। और क्या होगा, इसके अलावा इसमें कुछ और सेल्स होते हैं, उन सेल्स का काम क्या है, ये जो ग्रोइंग मेच्योरिंग स्पर्म्स है ना बेटे, मेच्योरिंग स्पर्म्स है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ये है आपका जर्मिनल एपिथेलियम का जर्म सेल हो गया। और ये जो सेल है, जो बड़े सेल थोड़े मैंने आपको दिखाए हैं, ये जो सेल है ये बेटे क्या है, दिस इज सर्टोली सेल्स। सर्टोली, अगर आपको सर्टोली सेल का फंक्शन जानना है तो आप इसका दूसरा नाम समझ लो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या है बेटे, नर्स सेल। अब बताओ नर्स क्या करती है, ख्याल रखती है ना, ख्याल रखती है। तो यहाँ पे नर्स सेल किसको नरिशमेंट दे रही है बेटे, जर्म सेल से जो गैमेट्स बन रहे हैं उनको क्या कर रही है, नरिशमेंट दे रही है। इसके अलावा अब कैसे पता करते हैं कि कोई मेल है और फीमेल है, एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता चलता है ना बेटे, तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे आता है, आप सबने सुना होगा एक हार्मोन जिसे मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, दैट्स टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है बेटे उसका, टेस्टोस्टेरॉन। और वो कौन रिलीज करता है, अभी तक तो हमने उसकी बात ही नहीं करी। वो इन बिटवीन, इनके बीच में ये जो सेल्स है ना बेटे, कौन से, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच बीच में कौन से सेल्स हैं, इन सेल्स का नाम होता है लिडिग सेल्स। क्या होता है, लिडिग सेल्स, या इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज सेल्स, द फंक्शन ऑफ दीज सेल्स इज टू प्रोड्यूस व्हाट, यस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आप फिर से समझिए, टेस्टिस है, टेस्टिस में टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल में जर्म सेल्स है, सर्टोली सेल्स है, जर्म सेल्स गैमेट्स बनाएंगे, सर्टोली सेल्स नरिश करेंगे, और लिडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आपको आ गया ना समझ में। आप क्या, अच्छा कैसे पढ़ते हो बेटे आप बताओ, हाउ डू यू स्टडी, कैसे पढ़ते हो आप, आपने एक बार पढ़ लिया बस हो गया। मैं तो ये मानती हूं कि सबसे अच्छा तरीका पता है क्या पढ़ने का, आप जो भी पढ़े हो वो किसी को पकड़ के समझा दो। पैसा है ना, पैसा अगर किसी को बांटोगे तो घट जाएगा। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए है, तुमने किसी को 50 रुपए दे दिए तो तुम्हारे पास तो 50 रुपए ही बचेगा, है ना। लेकिन अगर तुमने कुछ चीज समझी है पढ़ाई की और तुम किसी को पढ़ा रहे हो या समझा रहे हो अपने किसी फ्रेंड को, तो क्या वो घटेगा, क्या वो घट जाएगा, या तुम्हें और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बताओ। तो इसीलिए हमें जो आता है अगर हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारा पक्का हो जाता है। तो ये भी एक टिप है कि आप जब भी कुछ लर्न करते हो तो किसी को पकड़ के बिठा लो, जबरदस्ती नहीं, ऑफ कोर्स आप उसका कोई किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करोगे, आपका वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो इस बात को। ओके, तो मैंने ये बनाया है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया, आपको डिफरेंट सेल्स के नाम बताए। अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर आपसे कोई डक्ट का सीक्वेंस पूछेगा, क्या बोलोगे बेटा, सबसे पहले क्या बोलोगे, रेटे टेस्टिस बोलोगे ना, उसके बाद क्या बताएंगे आप,
वासा एफ्रेंशिया, एफ्रेंशिया छोटा वाला, डेफरेंस बड़ा वाला, वासा एफ्रेंशिया। फिर क्या बनाओगे, एपीडीडाइमस में आएगा स्पर्म, कहा, एपीडीडाइमस में, ठीक है। उसके बाद कहा जाएगा स्पर्म, वास डेफरेंस में, कहा गया, वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस। लेकिन 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 इस वास डेफरेंस में कुछ और ग्लैंड्स के सिक्रीशन आएंगे, और वो ग्लैंड्स का नाम मैंने एसेसरी ग्लैंड क्यों रखा है बेटे, क्योंकि ये एसेसरी हैं, मतलब इनका जो सिक्रीशन है वो जरूरी है स्पर्म की मूवमेंट के लिए। तो वी हैव सेमिनल वेसिकल्स, क्या है बेटे, सेमिनल वेसिकल्स, कितने, ये है पेयर्ड, पेयर्ड मतलब दो, ठीक है। उसके बाद है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कितना है बेटा, ये है 1 अनपेयर्ड। और काउपर्स ग्लैंड, जिसे हम काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी 2 होता है नंबर में, पेयर्ड होता है। और इन तीनों के सिक्रीशन को कंबाइंडली, इन तीनों के सिक्रीशन को कंबाइंडली क्या कहते हैं, यस, along with the sperm, what do we call it? Yes, you are absolutely right. When it joins with the vas deferens in the way, we can call it now semen. What do we call it? Semen. What is flowing in this tube? Semen. 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 ठीक है। तो ये जो है ना बेटे, मेल में जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट जो ट्रैवल कर रहा है वो, और जो यूरिन फॉर्मेशन होती है, दोनों का एग्जिट का रास्ता एक ही है, ठीक है, एक ही है। इसीलिए बाद यहां से डिफरेंस ने ज्वाइन किया इन डक्ट्स को। अच्छा, ये जो सिग्निफिकेंस क्या है, सेमिनल वेसिकल्स जो है ये नरिशमेंट देता है, मीडियम देता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म के लिए। और ये जो है, जो पीएच होता है सीमेन का, पीएच इज 7.4 or 5, and this has fructose in it. I'll tell you something very important. This can be used as certain cases, in case of the offensive है वो काफी, रेप केस में क्या होता है कि ये जो फ्रक्टोज है वो फीमेल बॉडी में और कहीं नहीं मिलता, मतलब ये सीमेन का पार्ट है। अब उससे आप टेस्ट में हेल्प मिलती है कि ये जो है केस किस चीज का है, तो वो डिफरेंट टॉपिक है। मैंने आपको ये बता दिया कि सेमिनल वेसिकल्स में फ्रक्टोज होता है, और ये जो काउपर्स ग्लैंड है ये म्यूकस सिक्रीट करता है, और कलेक्टिवली इन सारे सिक्रीशन को मिला के हम सीमेन बोलते हैं। और ये किसे, दिस लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, एंड it will exit through the what, it will exit through the penis. That's the male copulatory organ, that's the penis, and through which it, now we can call it urinogenital duct, urinogenital duct भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें यूरिन भी है और सीमेन भी है, ठीक है। तो ये इस तरह से मेल गैमेट will reach to the female gamete. That's why it is called as supportive structure, which has a foreskin over it, and that that will help in the ट्रांसफर ऑफ गैमेट। जैसे प्लांट्स में पढ़ते हैं ना बेटे कि मेल गैमेट जो है एंथर स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पे हम इसे कॉप्यूलेशन कहते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन हम इसे क्या कहते हैं बेटे, कॉप्यूलेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल बॉडी, इट्स कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कॉप्यूलेशन। तो ये मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ब्रॉड पार्ट है और कुछ डिटेल्स है वो सब मैंने आपको बता दिया है। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसको अच्छे से 2 बार 3 बार आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं ऑन विच टॉपिक आई शुड मेक वीडियोस। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर। थैंक यू।